नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यत दिशतारिणे। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यत दिशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya 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 Radha Ramana
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Giridhari, Radha Giridhari Radhe. Jaya Radha Giridhari, Radha Giridhari Radhe. Jaya Radha Gopinath, Radha Gopinath Radhe. Jaya Radha Gopinath, Radha Gopinath Radhe. Jaya Radha Ras Bihari, Radha Ras Bihari Radhe. Jaya Radha Ras Bihari, Radha Ras Bihari Radhe. Jaya Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan Radhe. Jaya Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan Radhe. Jaya Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan Radhe. Jaya Radha Bhakti Bihari, Radha Bhakti Bihari Radhe. Jaya Radha Bhakti Bihari, Radha Bhakti Bihari Radhe. Jaya Radha Kunj Bihari, Radha Kunj Bihari Radhe. Jaya Radha Kunj Bihari, Radha Kunj Bihari Radhe. Jaya Radha Madhava, Radha Madhava Radhe. Jaya Radha Madhava, Radha Madhava Radhe. Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Baladeva, Jai Subhadra. Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Baladeva, Jai Subhadra. Jagannath Swami Nayana Pathagami, Nayana Pathagami Bhavatu me. Jagannath Swami Nayana Pathagami, Nayana Pathagami Bhavatu me. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, 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 Gurudev. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. बोलो हरि नाम संकीर्तन की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि।
जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य
चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीम् उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। आप सभी का स्वागत है भगवद गीता क्लास में। तो हम अध्याय 6 श्रीमद् भगवद गीता यथारूप ध्यान योग श्लोक संख्या 39। तो हम पहले श्लोक का पढ़ेंगे अनुवाद के साथ, फिर उसके बाद हम मंगलाचरण के पश्चात श्लोक पर डिस्कस करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक संख्या 39। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुम् अर्हसि अशेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेता नहि उपपद्यते। हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। श्लोक संख्या 40। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। श्लोक संख्या 41। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वतीः समाः शुचीनां श्रीमतां गेहि योगभ्रष्टो अभिजायते। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है। श्लोक संख्या 42। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यद ईदृशम्। अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। श्लोक संख्या 43। तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते चा ततो भूयः संसिद्धो कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नत करने का प्रयास करता है। श्लोक संख्या 44। पूर्वा अभ्यासेन तेनैव ह्रियते हि अवसो अपि सः जिज्ञासुर अपि योगस्य शब्द ब्रह्मा अतिवर्तते। अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। श्लोक संख्या 45। प्रयत्नादयत मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धिस् ततो याति पराम गतिम। और जब योगी समस्त कलमश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंततो गत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। श्लोक संख्या 46।
तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो अपि मतो अधिकः कर्मिभ्यश्च अधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। श्लोक संख्या 47। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां सा मे युक्ततमो मतः। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है भगवत गीता क्लास में। तो हम श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक संख्या 39 से चर्चा करेंगे। श्लोक संख्या 39। एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुम् अर्हसि अशेषतः त्वद् अन्यः संशयस्यास्य छेता नहि उपपद्यते। अर्जुन बोल रहे हैं, हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है
जो इस संदेह को नष्ट करते हैं। अर्जुन को पता है कि भगवान जो है वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों को ज्ञाता है। उन्हें जो है तीनों काल का पूरा संपूर्ण ज्ञान है, तो वही मेरे संदेह का निवारण कर सकते हैं। तो अर्जुन यहाँ बता रहे हैं कि उनको संदेह है योगियों के बारे में, कि जो योगी होते हैं वो उनका कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद क्या होता है। तो अर्जुन को पूरा विश्वास है भगवान के ऊपर कि भगवान ही जो है मेरे संदेह का निवारण कर सकते हैं। तो अर्जुन को ऐसा क्यों लगता है कि भगवान कृष्ण ही उसके संदेह का निवारण कर सकते हैं? क्योंकि भगवान जो है वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों का ज्ञान रखते हैं, तीनों के ज्ञाता है। और भगवान जो है अऊर्ध्वसम है, ना तो कोई उनसे ऊपर है ना तो कोई उनके बराबर है। ऊर्ध्व मतलब ऊपर, सम मतलब बराबर, और अ लगा दिया पहले तो मतलब ना कोई उनके ऊपर है ना कोई उनके बराबर है। तो हम सभी जो है जीव भगवान के दास हैं, भगवान के दास हैं। तो हमें भगवान के दास की शरण लेनी चाहिए। तो भगवान का दास ही भगवान के बारे में सही ज्ञान दे सकता है, और ये चीज जो है अर्जुन को पता है। इसलिए अर्जुन बोलता है कि मैं भगवान का दास हूं, और भगवान जो है तीनों काल के ज्ञाता है, तो वही मेरे संशय का निवारण कर सकते हैं। तो और भगवान अर्जुन ऐसा क्यों कहता है, कौन से आधार पर ऐसा कहता है कि भगवान को सब कुछ पता है? क्योंकि भगवान जो है सबसे ऊपर है और बाकी जो जीव है सबके दास है। अगर भगवान सबके ऊपर हैं तो इससे हमें पता चलता है कि भगवान जो है तीनों काल के ज्ञाता है। हमारा जो संशय है, हमारा जो डाउट है, वो वही उसका निवारण कर सकता है जो तीनों काल का ज्ञाता, वर्तमान, भूत और भविष्य। इसलिए अर्जुन भगवान से पूछता है कि जो असफल योगी होते हैं उनकी क्या गति होती है। तो क्योंकि भाई कुछ योगी होते हैं जो कुछ समय तक तपस्या करते हैं, किसी कारणवश उनका पतन हो जाता है, तो उनकी क्या गति होती है ये भगवान ही बता सकते हैं। क्योंकि भगवान हर जीव को देख रहे हैं, भगवान हर जीव के हृदय में बसे हुए हैं। जीव जो होता है वो एक ही है, वो खाली अपने बारे में समझ सकता है, सोच सकता है, लेकिन भगवान जो है सब जीवों के हृदय में बसते हैं, इसलिए वो सभी जीवों का ज्ञान रहता है। जीव को एक ही खाली अपना ही ज्ञान रहता है, लेकिन भगवान को हर एक जीव के बारे में ज्ञान होता है, क्योंकि वही भगवान एक ही समय सारे जीवों के अंदर बसते हैं। तो भगवान अविभाजित है, वो एक ही समय सारे जीवों के साथ के हृदय में एक साथ बसते हैं। तो अर्जुन को ये पता है कि ये जो मेरा संदेह है ये भगवान पूरा कर सकते हैं, या कोई भगवान का सच्चा भक्त हो वही पूरा कर सकते हैं, और कोई नहीं इसका मेरे डाउट का क्लियर जो कर सकता है। श्लोक संख्या 40 में भगवान जो है अब अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देंगे, अर्जुन को जो संदेह है उसका निवारण करेंगे। श्लोक संख्या 40। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। भगवान ने कहा, हे पृथापुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी
का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। भगवान ने यहाँ पर क्लियर कर दिया, एकदम साफ साफ कह दिया कि जो योगी होता है, जो भगवान का नाम लेता है, भगवान की सेवा करता है, भगवान के आदेशों का पालन करता है और दूसरों से भी वही कहता है कि आप भी आज भगवान के आदेशों का पालन करें। तो ये जो हमारा जन्म होता है भगवान के आदेशों का पालन करने के लिए, तो यही संदेश जो है योगी हर एक जीव को देता है। और योगी जो होता है हमेशा भगवान के कार्यों में रत होता है। भगवान के भगवत गीता का पाठ करेगा, दूसरों को भगवान भगवत गीता सुनाएगा, भागवतम सुनाएगा, यही उसका काम है। तो एक योगी जो होता है भगवान की इच्छाओं, भगवान के आदेश पर काम करता है और यही हर एक जीव का काम होता है। हम यहाँ पर इस भौतिक जीवन में आए हैं तो हमारा कुछ उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य यह है कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा और भगवान के साथ क्या संबंध है, ये सब समझने के लिए। और जितने भी वेद पुराण हैं सबका उद्देश्य यही है, भगवान को जानना, भगवान के आदेशों का पालन करना। हमारा जन्म यहाँ पर इस भौतिक जीवन में क्यों हुआ है और ये सब हमें समझने की जरूरत है। तो यहाँ पर नारद मुनि जो है भगवान व्यासदेव को बताते हैं, त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजन अपक्वोऽथ पतेत ततो यदि यत्र क्वा वा भद्रम अबूथ अमुष्य किम को वार्त आप्तो भजताम स्वधर्मतः। तो यहाँ पर नारद जी भगवान को बता रहे हैं कि जो अपने सभी भौतिक आश्रयों को त्याग देता है और भगवान की शरण लेता है तो उसका कोई लॉस नहीं होता है, उसका कोई नुकसान नहीं होता है। हो सकता है भौतिक जीवन में देखिए कि देखो ये क्या है, इसने सब कुछ छोड़ दिया, सब मोह माया छोड़ दिया, सारा भौतिक छोड़ दिया, ये कैसा आदमी है, ऐसा हमें दिखेगा। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए, जो भौतिक आश्रयों का त्याग करता है वो सबसे सुखी होता है, तो भगवान की शरण में चला जाता है और उसका कोई लॉस नहीं होता है। तो और उल्टा जो भौतिक जीवन में लोग लगे हुए हैं, अपनी भौतिकता को संभाले हुए हैं, भौतिक आश्रय में हैं, पूरी तरह से डूबे हुए हैं, भौतिकता के पीछे भाग रहे हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, उनका नुकसान ही नुकसान है। वो अपना जो है ये जीवन व्यर्थ गंवा रहे हैं, जीवन व्यर्थ गंवा रहे हैं, भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं, इसलिए उनका जीवन जो है व्यर्थ है। यहाँ पर जो है इस श्रीमद् भागवतम के स्कंद 1 अध्याय 5 श्लोक संख्या 17 में नारद जी व्यास जी को ये उपदेश दिए हैं कि जो भगवान के सब कुछ छोड़ के भगवान के शरण में चला जाता है उसका कोई नुकसान नहीं होता है। और यहाँ पर बता रहे हैं भगवान कि ये श्लोक संख्या 40 में कि एक जो योगी होता है वो अपना सब कुछ त्याग देता है। वो अपना सब कुछ क्यों त्यागता है? आध्यात्मिक उन्नति के लिए। अगर आध्यात्मिक उन्नति करना है तो भौतिकता को त्यागना होगा, और भौतिक में अगर उन्नति करना चाहते हो, अपने इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हो, तो अध्यात्म से आपको दूर ही रहना पड़ेगा। ये अगर एक योगी होता है तो उससे ये अपेक्षा की जाती है कि वो अपना सब कुछ त्याग के भगवान की शरण में होता है, भौतिकता से कुछ उसका लेना देना नहीं होता है। और इस यहां पर प्रभुपाद लिखते हैं कि जो अपने नियत कर्मों को नहीं करता है, अपने नियत कर्मों को नहीं करेगा तो उसको क्या होगा? दुख होगा, क्लेश होगा, और ये तो कलह युग है ही है, जिसे कलयुग भी कहा जाता है।
तो इस कलह युग में वो फंसा रहता है। और जो भी काम करता है, जो भी कार्य करता है, वो जो है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनसे संबंधित ही होता है। कितना भी अच्छा कर ले सतोगुण में आएगा, लेकिन वो होगा कुछ ना कुछ, उसकी कोई भी काम कर रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है, कोई पूजा पाठ कर रहा है, तो उसका जो है कुछ मंशा है कि मेरे को जो है बहुत सारा धन चाहिए, अच्छा पति चाहिए, अच्छी पत्नी चाहिए, बच्चे चाहिए, मतलब ये सब क्या है, भौतिक आशाएं। तो वो भौतिकता में एकदम लगा रहता है। और अगर भौतिकता में लगा हुआ है तो उसको जो है वैसे ही अगर वो कोई क्रिया करता है तो हर एक क्रिया का प्रतिक्रिया भी होता है। एवरी एक्शन हैज रिएक्शन। और जो योगी होता है वो अपना सब कुछ त्याग कर भगवान के लिए कार्य करता है। तो हो सकता है कि हमें भौतिकता में दिखे, भौतिक संसार में, कि उसका कुछ नुकसान हो रहा है, लेकिन उसका कुछ भी नुकसान नहीं हो रहा है। जो अपना सब कुछ छोड़कर भगवान पर पूरी तरह से निर्भर हो जाता है, भगवान उसका सब कुछ पूरा करते हैं। जो कुछ है उसको सुरक्षित रखते हैं, और जो कुछ नहीं है वो भी उसके लिए वो सुरक्षित भगवान रखते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो कभी भगवान को भूलता नहीं है और अपने आप को हमेशा भगवान के कार्य में लगा के रखता है। वो हमेशा जो है भागवतम का पाठ करेंगे, भागवतम कृष्ण लीला के बारे में चर्चा करेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे, भगवत गीता सुनाएंगे, मंदिर जाएंगे, मंदिर में सेवा करेंगे। तो अपने हर एक सपल को भगवान की सेवा में लगा के रखें। और अपना कोई भौतिक काम भी वो कर रहे हैं तो वो भगवान को समर्पित करते हैं और भगवान को केंद्र में रख के करते हैं। तो जब भगवान के केंद्र में रख के कोई भी कर्म किया जाता है तो वो कर्मयोग बन जाता है, तो वो भगवान को समर्पित होता है। क्योंकि भगवान जो है हर एक, वो जो है भगवान को हर एक अपने कार्य में भगवान को केंद्र बिंदु बना के कार्य करता है। और जो लोग भौतिकता में हैं वो क्या करते हैं, वो अपना जो है अपने फायदे के लिए काम करते हैं, तो वो लोग अध्यात्म से दूर रहते हैं। और जो है वो अपना नियत कार्य नहीं करते हैं, और जो हमारे शास्त्रों में दिया गया है उसको फॉलो नहीं करते। तो उससे क्या होता है, वो कृष्ण भावनामृत से दूर रहते हैं। और कृष्ण भावनामृत में आने के लिए आपको भगवान के दास का शरण लेना पड़ेगा, आपको भगवान का दास बनना होगा। तो अगर आपने भगवान का दास का शरण ले लिया तो आप जो है भगवान के शरण में आ गए। भगवान के दास का काम ही है लोगों को भगवान का दास बनाना। तो ये हम भगवान यहाँ पर श्लोक संख्या 40 में बता रहे हैं। श्लोक संख्या 41। प्रभुपाद लिखते हैं और श्लोक संख्या 40 में कि ये जो योगी होता है वो हमेशा कल्याणकृत कार्यों में लगा होता है। कल्याणकृत मतलब होता है जो हमेशा जो है शुभ कार्यों में लगा हो। शुभ कार्य वो जो भगवान के लिए किया जाए, और जो हमेशा भगवान के कार्यों में लगा रहता है उसका कभी विनाश नहीं होता। और वो हमेशा जो नियत कार्य होता है वो उसमें लगा रहता है, और वो हमेशा हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, हमारे जो साहित्य हैं, हमारे जो वेद पुराण हैं, उनके निर्देशों के अनुसार कार्य। एक साधु जो होता है वो हमेशा गुरु, साधु और शास्त्र को समर्पित कर देता है, उसके अनुसार ही अपना काम करता है। तो उससे क्या होता है कि उनका जो हर एक कार्य है वो शुभ होता है, और वो शुभ कार्यों की वजह से वो अध्यात्म में उन्नति करते हैं। और बाकी लोग जो हैं, जो नियत कार्य नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, अपने इंद्रियों की तृप्ति में लगे रहते हैं। तो उनके लिए फिर अध्यात्म बहुत दूर रहता है, और उनके जो कार्य होते वो शुभ नहीं होते।
उनके जो कर्म होते हैं वो कर्म योग से नहीं होते हैं, क्योंकि वो भगवान कृष्ण को केंद्र में नहीं रखते और पशुता की तरफ आगे बढ़ते रहते हैं। तो पशु क्या करते हैं? खाते हैं, सोते हैं, मैथुन करते हैं और अपना वंश बढ़ाते हैं, इसी में लगे रहते हैं। तो अगर इंसान का जन्म मिला है और यही हम चारों एक्टिविटी कर रहे हैं, ईटिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, तो उससे क्या होगा? आपका कभी अध्यात्म में जो है आप जो है प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, उन्नति नहीं कर पाएंगे। और ये सब कौन करता है? वो जो अपने आप को बहुत बोलते हैं कि भौतिक क्वालिफिकेशन ले लिया है उन्होंने, बहुत योग्यता रखते हैं, पीएचडी होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, डॉक्टर होते हैं, तो वो क्या करते हैं? अपनी इंद्रियों तृप्ति के पीछे भागते रहते और वो कभी सफल नहीं होते। वो ऐसे कुछ तो भी झूठा मूठा को भी सच दिखाने का प्रयास करते हैं। तो सही ज्ञान जो होता है वो भगवान के बारे में ज्ञान होता है। सही कर्म जो होता है वो भगवान के लिए जो किया गया कर्म है वो सही कर्म है। आप कोई भी भौतिक काम भी कर रहे हैं, भगवान कृष्ण को केंद्र में रखिए, तो आपका जो कर्म है वो कर्म योग बन जाएगा। और ये जो 3 तरह के लोग होते हैं, कर्मी, ज्ञानी और भक्त। तो कर्मी जो होते हैं वो हमारे जो है साहित्य को, हमारे वेदों को, पुराणों को अपने फायदे के लिए फॉलो करते हैं कि मैं कौन सा यज्ञ करूं कि मुझे ये फायदा हो जाए, मैं कौन सी पूजा पाठ करूं कि मुझे ये फायदा हो जाए। तो वो अपने खाली फायदे के लिए काम करते रहते हैं। तो वेद पुराणों को वो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें जो है कर्मी कहा जाता है। भौतिक फल के लिए वो जो है शास्त्रों का अनुकरण करते हैं। चलो ठीक है, ये न के न प्रकार ने किसी तरह से तो भगवान का नाम ले रहे हैं, तो उन्हें जो है कर्मी कहा जाता है। और जो ये ज्ञानी होते हैं, ज्ञानी जो है उनको भगवान के बारे में जानना होता है, मुक्ति क्या है। तो ऐसा कर कर धीरे धीरे वो भगवान से जुड़ते हैं, तो भगवान के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, मुक्ति क्या है, इस तरह से वो जो है उसमें जुड़े रहते हैं और उन्हें ज्ञानी कहा जाता है। लेकिन जो भक्त होता है, भगवान का सही भक्त होता है, वो भगवान की सेवा में लगा रहता है। भगवान की सेवा में कैसे लगा रहता है? वो मंदिर जाता है, कृष्ण कथा सुनता है, कृष्ण कथा के बारे में डिस्कस करता है, भगवान के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में वर्णन सुनता है, करता है, तो और भक्तों के साथ मिलता है, मंदिर में कुछ सेवा करता है, तो उससे क्या होता है? वो फिजिकली जो है सेवा में लगा रहता है, तो उसका ध्यान जो है इधर उधर गया भी तो फिर से वहीं आ जाता है। और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो उसको वापस खींच के लाते हैं। लेकिन अगर आप घर पे बैठकर ऐसे खाली सुप्त प्रक्रिया करके ध्यान कर रहे हैं, तो ध्यान तो भाई हमारा एकदम, आपको पता है कितना मजबूत होता है। अभी यहाँ है, अगले पर लंदन होता है, इतना तेजी से चलता है वो। तो हमारी जो मन की गति है वो हवा और प्रकाश की गति से भी कई गुना तेज है, बहुत तेज भागता है। तो ये जो कल्याणकृत होते हैं, योगी जो होते हैं कल्याणकृत, उनका हर एक कार्य भगवान से जुड़ा होता है, हमेशा जो है वो शुभ कार्य करते हैं, उनका हर एक कार्य मुक्ति से संबंधित होता है। तो भगवान यहां बता रहे हैं कि ये जो योगी होते हैं वो उनका कोई भी कार्य अशुभ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनका हर एक कार्य भगवान के इच्छा के अनुसार होता है। गुरु साधु शास्त्र के अंदर उन्होंने जो है अपना सरेंडर कर दिया होता है, पूरी तरह से समर्पित होते हैं। वो जो भी करेंगे गुरु साधु शास्त्र के आदेशों के अनुसार ही करेंगे। तो भक्तिष्ठ भावनामृत में किया गया हर एक कार्य शुभ होता है। और जो अष्टांगी योगी होते हैं, जो अलग अलग तरह के योगी होते हैं, उन सब का जो है अल्टीमेट एम जो होता है वो भक्ति योग होता है। भक्ति योग में जो है, क्योंकि आप डायरेक्टली भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, और ये जो योगी होते हैं, ये जो भगवान के भक्त होते हैं, ये हमेशा जो है भगवान की सेवा में ही लगे रहते हैं।
और वो कुछ अगर भौतिक में कर भी रहे हैं तो भी वो भगवान कृष्ण को केंद्र में रख के करते हैं, इसलिए उनके द्वारा किया गया हर एक काम कल्याणकृत होता है, शुभ होता है और वो भगवान से जुड़ा होता है। श्लोक संख्या 41। आगे भगवान बता रहे हैं कि ये जो योगी होते हैं, इनके अगर ये अनसक्सेसफुल रह गए, असफल रह गए, तो इनकी क्या गति होती है। श्लोक संख्या 41। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वतीः समाः शुचीनां ससीमतां गेहे योगभ्रष्टो अभिजायते। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि असफल योगी की क्या गति होती है। तो प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि जो योग प्रैक्टिस करते हैं उनका उद्देश्य क्या है। उनका उद्देश्य यही होता है कि वो कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करें, भगवान के धाम को प्राप्त करें, गोलोक वृंदावन धाम को प्राप्त करें। और जो ऐसा नहीं कर पाए उनका क्या होता है, उनका भगवान बोलते हैं कि जो है वो अगर इस कार्य में असफल रहेगा तो उन्हें क्या होगा, उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी और वहां पर अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के पश्चात फिर उन्हें जो है एक अच्छे धनवान परिवार में जन्म मिलेगा, या फिर किसी ब्राह्मण के परिवार में जन्म मिलेगा, या फिर किसी वैष्णव के परिवार में जन्म मिलेगा, जहां से वो अपनी भक्ति फिर से जहां पर छोड़ दिए थे वहीं से शुरुआत होगी। और अच्छे परिवार में जन्म मिलना भी एक जो है भाग्य का होता है। तो अगर आपने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे, भगवान की भक्ति की होगी, सेवा किया होगा, दान पुण्य किया होगा, भगवान के लिए कोई कार्य किया होगा, तो उसे अच्छे कुल में जन्म मिलेगा और जो है स्वर्गलोक में जगह मिलेगी। वहां पर कई वर्षों तक जो है एंजॉय करने के बाद, भोगने के बाद फिर वो अच्छे परिवार में जन्म लेते हैं। तो ये जो है श्लोक संख्या 41 में भगवान बता रहे हैं। श्लोक संख्या 42 में भगवान आधा बता रहे हैं, अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यद ईदृशम्। अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। अगर आप एक छोटे समय के लिए योग किया, तपस्या की, शुभ कार्य किए, भगवान के आदेशों के अनुसार काम किए, गुरु साधु शास्त्र के समर्पित करके अपना काम किए, तो जो है उन्हें अगला जन्म, उस समय तक वो जो है स्वर्गलोक में भोग करेंगे। उस भोग करने के पश्चात फिर उन्हें किसी धनवान परिवार में, किसी ब्राह्मण परिवार में, किसी सदाचारी के परिवार में उन्हें जन्म मिलेगा। लेकिन श्लोक संख्या 42 में भगवान बता रहे हैं कि अगर उसने दीर्घ काल तक योग करने के बाद अगर असफल रह गया तो फिर क्या होगा। भगवान यहाँ बता रहे हैं कि उसे जो है किसी वैष्णव के परिवार में जन्म मिलेगा। तो वैष्णव के परिवार में जैसे जन्म हमारे श्रील प्रभुपाद का हुआ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का हुआ, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना पूरा जीवन कृष्ण भावनामृत को समर्पित कर दिया और पूरा जीवन वो सिर्फ जो है भगवान के नाम का गान किए और लोगों को वही गान करने के लिए भी सिखाया। तो यहां पर बता रहे हैं कि अभी इस तरह के परिवार, क्योंकि ये भौतिक संसार में अभी इस तरह के परिवार बहुत कम मिलते हैं जहां पर श्रील प्रभुपाद जैसे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जैसे लोगों का जन्म होता है। तो ये जो है
हमारे आचार्य हैं, ये असाधारण लोग हैं जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर पूरा समाज को दे दिया और भगवान के नाम को दे दिया, भगवान को, कृष्ण भावनामृत को पूरा समर्पित कर दिया। और ये जो कुल होते हैं, जो परिवार होते हैं वैष्णव, ये बहुत ही भाग्यवान परिवार होते हैं। और ये जो है, ये इन घरों में, इन परिवारों में सिर्फ भगवान का ही नाम लिया जाता है, पूरी तरह से भगवान पर आश्रित होते हैं। तो ऐसे कुल में अगर किसी शिशु का जन्म होता है तो उसका भाग्य खुल जाता है। उसने जहाँ पर अपने पुण्य कर्म करने छोड़े थे पिछले जन्म में, वहीं से उसका शुरुआत होता है और वो जो है निरंतर भगवान का नाम लेते हुए भगवान धाम को जाता है और अपने साथ बहुतों को लेके जाता है। और ये जो परिवार होते हैं बहुत बुद्धिमान होते हैं और ये बहुत अपने संस्कृत के प्रति बहुत समर्पित होते हैं और इनको एक अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है और एक गुरु परंपरा से जुड़े हुए होते हैं। ये लोग जो है गुरु परंपरा से जुड़े हुए होते हैं। तो आचार्यों के संग में अगर आप करेंगे तो आपको क्या होगा, आपको सद्बुद्धि ही मिलेगी, भगवत भक्ति ही मिलेगी। तो ऐसे कुल में अगर किसी बालक का जन्म होता है तो वो बहुत भाग्यवान माना जाता है। उदाहरण के लिए जैसे हमने देखा कि श्रील प्रभुपाद, हमारे श्रील प्रभुपाद एक डे के परिवार में जन्म लिए थे, तो डे फैमिली से बिलोंग करते थे और उन्होंने जो है वहाँ से अपनी भक्ति को आगे बढ़ाया। तो डे परिवार जो था, श्रील प्रभुपाद का जो घराना था, वो पूरी तरह से भगवान को समर्पित था, भगवान के लिए वो कर्म करते थे। प्रभुपाद का जब वहाँ जन्म हुआ तो प्रभुपाद को भी वैसे ही संस्कार मिले और प्रभुपाद ने कृष्ण भावनामृत का आंदोलन पूरे विश्व में फैला दिया। वैसे ही दूसरा उदाहरण आता है हमारे श्रील प्रभुपाद के आचार्य, उनके जो है आध्यात्मिक गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो भक्ति विनोद ठाकुर के घर में जन्म लिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर भी एक अच्छे वैष्णव परिवार से संबंध रखते थे और गुरु परंपरा से जुड़े हुए थे। तो जब ऐसे परिवार में भक्ति सरस्वती ठाकुर का जन्म होता है तो वो भी अपने आप उस गुरु परंपरा से जुड़ जाते हैं और फिर आगे चलकर उन्होंने श्रील प्रभुपाद जैसे महान हस्ती को, असाधारण व्यक्ति को उन्होंने दीक्षा दी और वो आचार्य बने और श्रील प्रभुपाद ने पूरे विश्व में जो है कृष्ण भावनामृत का बिगुल बजा दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो है असफल योगी जो होता है वैष्णव के परिवार में जन्म लेता है और वहां से अपनी भक्ति शुरू करता है और कृष्ण भावनामृत का आंदोलन पूरे विश्व में फैला देता है। श्लोक संख्या 43 भगवान आगे बता रहे हैं, तत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकं यत ते चाततो भूयः संसिद्धो कुरु नंदन। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। तो जब ऐसे वैष्णव कुल में जन्म होगा कि आपकी भक्ति पिछले जन्म में जहां से छूट गई थी वहीं से शुरू होगी। इस भौतिक जीवन में हम 1000 बार सक्सेस हो, लेकिन एक बार अगर असफल हो गए, सक्सेस नहीं हुए, तो उसे असफल कहा जाता है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में अगर आपने पिछले जन्म में आपने जितनी भी भक्ति की होगी और अगला जन्म जब आपको मिलेगा तो आपकी भक्ति जो पिछले जन्म में छूट गई थी वहीं से शुरू होगी। तो जैसे भौतिक जीवन में आप 99% सक्सेस हुए, 100% नहीं पहुंच पाए तो उसे असफल कहा जाता है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में अगर आपने पिछले जन्म में 99% भक्ति की थी, 1% रह गया था, तो अगले जन्म में आपकी जो शुरुआत होगी वो 99 के बाद से होगी। तो आप उससे क्या होगा, आप जो है 100% को पहुंच जाएंगे। तो ये है भौतिक और आध्यात्मिक फर्क है। तो यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं
कि पिछले जन्म में जहाँ से आपने भक्ति छोड़ी थी वहीं से आपकी भक्ति शुरू होगी। तो यहाँ पर प्रभुपाद जो है अपने तात्पर्य में उदाहरण में बताते हैं कि जैसे भरत महाराज का हुआ था। भरत महाराज का क्या हुआ? भरत महाराज जो है एक हिरण से आसक्त थे। उनकी आसक्ति जो है हिरण में हो गई थी, और हिरण में आसक्ति होने की वजह से उनका जो अगला जन्म मिला वो हिरण का मिला। हिरण का जन्म मिलने के बाद भी उन्हें का जो कॉन्शियसनेस था वो पूरी तरह से भगवान की भक्ति में था, एकदम शांत थे। तो वो जब अगला जन्म उनका फिर बाद में हिरण का देह त्याग करने के बाद में जब उनका जन्म होता है तो वो क्या होता है? उनका जन्म होता है जड़ भरत के रूप में। तो जड़ भरत के रूप में जब उनका जन्म होता है तो आगे चल के वो राजा रहुगण को निर्देश देते हैं। तो राजा रहुगण के निर्देश देने के बाद राजा रहुगण जो है उनको समर्पित कर देते हैं कि ये जो जड़ भरत हैं ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। तो जो भक्ति होती है ना वो आपसे कभी छूटती नहीं है। अगर आप इस जन्म में जितना भक्ति करेंगे ये पूरी की पूरी भक्ति आपको अगले जन्म में ये आपके साथ जाएगी। भौतिक जीवन में ऐसा नहीं है, आप कितना भी वो धन इकट्ठा कर लें आपके साथ एक भी पैसा जाने वाला नहीं है। तो ना हम कुछ लेके आए थे ना हम कुछ लेके जा पाएंगे। तो ये सब भगवान जो है बता रहे हैं कि आपकी भक्ति जो है अगले जन्म भी आपके साथ में जाती है। श्लोक संख्या 44। पूर्व अभ्यासेन तेनैव ह्रियते हि अवसो अपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्म अतिवर्तते। अपने पूर्व जन्म को दैवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित हो जाता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। तो जो भगवान का भक्त होता है ना वो इन सब चीजों से परे होता है क्योंकि वो भगवान से डायरेक्ट जुड़ा होता है। तो यहां पर भगवान बता रहे हैं कि अपने पूर्व जन्म में जो उसने पुण्य किए थे वो सारे पुण्य उसके साथ जाते हैं ताकि वो अगले जन्म में वहां से अपना आगे भगवान की भक्ति करके भगवत धाम को जा सके। तो अध्यात्म में कोई नुकसान नहीं है। आप जितनी भी भक्ति करें वो प्लस ही है, वो आपका उससे कोई नुकसान नहीं होता है। तो यहां पर भगवान बता रहे हैं कि वो जो होते हैं, जो योगी होते हैं, वो भगवान के कार्यों में लग जाते हैं अपने आप। नेक्स्ट अगले जन्म में भगवान के कार्य में अपने आप लग जाते हैं। तो उसको बोलते हैं शब्द ब्रह्म। शब्द ब्रह्म मतलब जो नियत कार्य है, जो भगवान के लिए कार्य किए जाते हैं। और जैसे हुआ अपने आप जो भगवान की भक्ति में लग जाते हो, भगवद गीता का पाठ करने लग जाते हो, भागवतम के क्लास में जाने लगते हो, भागवतम के बारे में आपका चर्चा करने लगते हो, तो अपने आप जो आध्यात्मिक कार्य है ना उसमें अपने आप जुड़ जाते हो। क्योंकि वो जोड़ने के लिए भी आपको किसी और ऐसा कोई मिल जाएगा जो अपने आप को जोड़ देगा। तो सारे जो परिस्थितियां हैं, सारी परिस्थितियां अपने आप भगवान बना के भेजते हैं ताकि उस योगी को अगले जन्म में सफलता मिल सके। पूर्व जन्म में जो अच्छे कर्म किए थे, भगवान के लिए कार्य किए थे, कर्मयोग किए थे, वो सारे कर्मयोग उसको इस जन्म में वापस से मिल जाते हैं। और जैसे प्रभुपाद अपने तात्पर्य में उदाहरण में देते हैं कि जो है माता देवहूति को जैसे कपिल मुनि आके उनको अपनी माता को उपदेश देते हैं हाँ कि भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान के भगवत कार्यों में कैसे लगा जाए। और हरिदास ठाकुर, उनका जन्म हुआ था मुसलमान परिवार में, लेकिन आगे चल के वो नामाचार्य कहलाए। तो और भगवान चैतन्य महाप्रभु के कार्यों को, उनके आंदोलन को हरिदास ठाकुर ने आगे बढ़ाया। और
उन्हें आगे चलकर नामाचार्य कहा गया। और वो जो है मुसलमान परिवार में जन्म लेने के बाद भी वो जो है आगे भगवान का नाम लिया और भगवान के कार्यों में लग गए, अपने आप सब लग जाते हैं। तो ये है उनका पूर्व जन्म का जो पुण्य रहा होगा, उसकी वजह से वो अपने आप ऐसे अच्छे कार्यों में लग जाते हैं। तो इस तरह से भगवान बताते हैं कि आप जो भी पुण्य करते हैं वो आपके साथ अगले जन्म में जाता है और आप वहां से जो है अपनी भक्ति प्रारंभ करते हो। तो भक्ति में कोई नुकसान नहीं है। आप जितनी भक्ति किए रहेंगे आपकी उतनी भक्ति अगले जन्म में आपके साथ में जाएगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम यहाँ पर अपनी वाणी को रोकेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते। श्रीमद् भगवद गीता की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।